So we will be studying the electric charge, type of electric charge, properties of electric charge, and electric circuit and electric current. Okay, so let's start the chapter. So first beta, what is electric charge? What do you mean by the electric charge? Okay, so electric charge is just the fundamental property of the matter, okay, due to which it experiences the electric and magnetic effects. Okay, what does it mean by electric and the magnetic effects beta? Okay, suppose one object is here kept here, okay, some other object is kept here, okay. Suppose if these objects are the charges, okay, और जैसे कि इन दोनों के पास कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, ओके, सो दे विल हैव इधर सम ऑफ द रिपल्सन्स, ओके, or some of the attractions or some of the repulsions, okay. So simply the charge is like some kind of electric or magnetic effects they will feel, okay. कुछ ना कुछ उनके पास या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होंगे, लाइक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यू मे से इलेक्ट्रिक फोर्सेस or magnetic forces. They will feel, okay. So like क्या हुआ बेटा चार्ज? सो हाउ कैन यू डिफाइन द चार्ज? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ओके, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ओके, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, ठीक है। तो इसको या तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील होता है या कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज देन, ओके, चार्ज हैव द यूनिट एंड दैट इज द कूलम। So the unit of charge is coulomb, okay. So next we will see then sir what are the types of the charges, okay. The types of the charges, there are two types of the charges. Charge can be the positive, या तो positive charge हो सकता है या negative charge हो सकता है, दो type के charges होते हैं, there are two types of the charges, okay. So the example for the positive charge is, I think everyone knows, proton, okay. So the example for the positive charge is proton, and the best example for the negative charge का सबसे best example क्या है? Electron, okay. So and one more thing, like sir then what is the magnitude of the charge? Charge का magnitude क्या है? Positive charge and negative charge, ठीक है, example is the proton, okay. Example of the positive charge is the proton and example of the negative charge is electron. फिर आता है कि सर what is then the magnitude of charge, okay. So magnitude of the charge is beta we define with the electronic charge, okay, and that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, okay. Or if the charge is negative, so we use minus. The same charge, the same magnitude the positive charge has, okay, but we define its magnitude as plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, okay. So the magnitude of the positive charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and the magnitude for the negative charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And for the negative charge we are taking the magnitude as minus, and for the, keep this thing in mind, the negative charge, the value of that negative charge is minus 1.6 into 10 power minus 19, okay. So and this is the type of the charges, okay. So basically there are two types of the charges, one is the positive charge and one is the negative charge, okay. So let's move to the the next comes, sir, does any object exist in the nature that is completely free from the electric charge? क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जो मतलब जिसके पास बिल्कुल भी चार्ज ना हो, दैट इज completely free from the electric charge, okay. So beta, if we study, I think everyone knows, some of the if we see the structure of the atom, okay, if we go with the structure of the atom, okay, see, suppose this is the nucleus, okay, and some cells are there, okay. So this is the nucleus and some of the cells are there,
okay, in which electrons move. Okay, so this you can say this is as the nucleus. Okay, here in the nucleus the positive charge stays in the nucleus. Okay, and the negative charge okay, you can say the negative charge, the electrons revolve around the nucleus. Okay, so electrons are there in the cells and the positive charge stays in the nucleus at the center of the atom. Okay, since all the objects in this in our net all the objects are made of the atoms. ठीक है, सारे objects किसके बने होते हैं? एटम्स के, और एटम्स के पास चार्ज होते हैं, positive charge also and then negative charge also. Okay, so we say that all the objects, okay, or you can say that every object is made up of atoms. Okay, ठीक है, और each atom contains protons, and so you can write one point: every object is made up of atoms, and these atoms contains protons and electrons. Protons means with a positive charge and electrons means negative charge. Okay, so every object is made up of atoms and all the atoms contain positive charge and negative charge. So we can't say that the object exists without any charges, or we can't say that the object is free from the electric charge. Okay, one thing can be there, like the number of positive charge or number of protons might be equal to the number of electrons. ठीक है बेटा, ऐसा हो सकता है कि protons का number and electrons का number same हो. In that case we can say the body is neutral. Okay, so since if we are saying the body is neutral, it doesn't means that it is free from the charges. Okay, कि ऐसा नहीं है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है. ठीक है, इफ वी आर सेइंग द बॉडी इज न्यूट्रल. ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर बॉडी न्यूट्रल है या अनचार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, total positive and the negative charge, total positive and the negative charges are equal. Means in this case protons equals to electrons. Okay, so the positive charge, total positive charge is equals to the total negative charge. Okay, so in that case we can say that like the body is uncharged or the body is neutral. Okay, so the answer for this is no. Okay, better than the next comes. See, a body becomes positively charged when it loses electron. Okay, suppose some body is there, one object is there. Okay, it is consisting of 10 protons and 10 electrons. Okay, one object is there, it consists of the 10 protons and 10 electrons. उसके पास 10 protons है, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो बेटा अगर इसमें से इफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए. ओके, व्हाट विल हैपन? सो दिस बॉडी नाउ, how much charge does this object or this body contains? 10 positive charge plus 10 protons and 7 electrons. Okay, 7 electrons. So who is dominating here? Which charge is dominating here? The number of protons is dominating. So overall we can say that whenever the electron leaves the body, okay, whenever any object or any body loses the electrons, okay,
whenever any object or the body loses the electrons, it becomes positive charged. Okay, it becomes positive charge. Got it? So overall we can say here the number of protons are more and the number of electrons are less. So 7 electron and 7 proton will be cancelled. Okay, and 3 protons will be there. Okay, so the net charge for this object will be the positive. Okay, so this body became positive charge. Okay, so the same thing is said, like the body becomes positively charged when it loses electrons. Okay, but the next thing comes. Okay, the same thing is here, same thing है, the body becomes negatively charged when it gains electron. Okay, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इफ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू द, और इफ वी प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू दिस ऑब्जेक्ट, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर से इसको दिया. ओके, इफ आई लाइक इफ आई प्रोवाइडेड 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड, सो as the negative charge came, okay, extra negative charge came. Okay, so this body will become negative charge. Okay, whenever the body gains the electron, it becomes the negative charge. Whenever the body loses, okay, so whenever the object or any body loses the electrons, it becomes positive charge, and whenever it gains the electron, it becomes negative charge. Okay, so for this object, what I can write, total 10 protons and 15 electrons. So effective charge will be 5 electrons. For this object, the effective charge will be 5 electrons. So I can write, simply I can write, this is negatively charged object. Okay, got it? The next we will see what are the properties of the electric charge. Electric charge की क्या क्या properties होती हैं, क्या क्या खास बात होती है electric charge की. Okay, so we already studied है ना, दो टाइप के charges होते बेटा, positive charge and negative charge. Okay, positive को बोलते हैं हम proton and negative को electron. Negative charge is electron. So okay, so positive charge we denote by plus and negative charge minus. So like what is the first property of the electric charge? The first पहली property है electric charge की, like charges repel and unlike charges attract. What does it means? Like charges means two same charges are there. Okay, two same charges are kept, like plus proton are kept, so they will repel each other. Okay, so they will repel each other. Okay, unlike charges, if unlike charges, same thing for the minus or the negative charge, if two negative charge are kept, they will repel each other. Okay, beta the next is if unlike charges are there. Unlike charges means beta one is the positive charge and one is the negative charge. Okay, so if unlike charges are there, they will attract each other. Okay, plus minus, or you can say if minus and one is plus. Okay, so they will attract each other. Okay, so unlike charges, always keep in mind, like चार्जेस रिपेल करते हैं बेटा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. जो अलग अलग नेचर होता है उनका वो अट्रैक्ट करते हैं, एंड दीज लाइक द चार्जेस विच आर ऑफ द सेम नेचर, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज. ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज व्हाट डज इट सेज, लाइक हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे यहाँ पर Q1 चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर Q2 चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर Q3. ओके, सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इस बॉडी का टोटल चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सिंपली व्हाट आई कैन डू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. ओके, व्हाट आई कैन डू द
और आई कैन सम अप द इंडिविजुअल चार्जेस, ओके, ठीक है, तीनों चार्जेस का समेशन कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके। सो बट आई इफ फॉर एग्जांपल इफ वी टेक इफ वन बॉडी इज देयर, यहाँ पे 3 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम है और यहाँ -2 कूलम है, ठीक है। तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 क्या है अपना 3 कूलम, Q2 क्या है -2 कूलम एंड Q3 क्या है 4 कूलम, ओके। बेटा अलजेब्रिक सम लेना है, ओके। अलजेब्रिक सम मीन्स वी हैव टू टेक विद द साइन either plus or minus. If the charge is positive, nothing is mentioned, the charge is positive, you have to take plus 3 coulomb, and if the charge is negative, negative sign is mentioned, or if it is mentioned like इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, तो आपको क्या करना है -2 कूलम, ओके, प्लस 4 कूलम, ओके। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस विल बी 3 and -2 it becomes 1 and 5 coulomb. 5 coulomb will be the total charge of the body, okay. So like this you can calculate the total charge of the system by doing the algebraic sum, ठीक है। This was the second property, additivity of the charges. The total charge on a system is the algebraic sum of individual charges, okay. So next property आता है बेटा conservation of charge, ठीक है। तो बेटा conservation of charge क्या बोलता है, conservation of charge is the property, ठीक है, कि चार्ज का नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, चार्ज कोई भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है चार्ज, ठीक है। और कंडीशन बीइंग द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। टोटल चार्ज क्या रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका देखूं जैसे लाइक सपोज इफ आई टेक वन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका इस पे चार्ज है सपोज 4 कूलम, ठीक है, एंड वन मोर ऑब्जेक्ट इज देयर जिस पे चार्ज है 10 कूलम, ओके। सो इफ आई कनेक्ट द बॉडीज, ओके, इफ आई कनेक्ट द बॉडीज और इफ आई ट्रांसफर लाइक 3 कूलम चार्ज फ्रॉम दिस बी ऑब्जेक्ट, suppose this is the B and this is the A, if I transfer 3 coulomb charge from B to A, okay, ठीक है, फिर क्या होने वाला है, suppose this was our A, this is B, ठीक है। अगर मैं 3 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर देता हूं तो यहाँ पे कितना होगा 7 कूलम एंड यहाँ पे कितना रह जाएगा 7 कूलम, ओके। The main thing is initially the total charge was 4 coulomb plus 10 coulomb, it was 14 coulomb, ठीक है। इनिशियली टोटल चार्ज कितना था 14 coulomb, आफ्टर दैट Q total will be 7 coulomb plus 7 coulomb, again it is 14 coulomb, ओके, ठीक है। तो टोटल चार्ज है वो, जो भी टोटल चार्ज है अपना सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट, हाँ, वी ट्रांसफर द चार्ज, आई एग्री, ओके, चार्ज फ्रॉम दिस बॉडी गेट रिड्यूस्ड, ओके। इस पे चार्ज इंक्रीज हुआ है, इस पे चार्ज बढ़ गया, 4 कूलम से 7 कूलम आ गया टोटल, ठीक है, 4 कूलम से 7 कूलम आ गया, इस बॉडी पे चार्ज कम हुआ है, 10 कूलम से 7 कूलम आ गया, बट टोटल चार्ज है अपना जो सिस्टम का, ओके, बीइंग दिस एज ए सिस्टम, ए एंड बी बोथ आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट, ठीक है। दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लाइक व्हाट डज इट सेज इज जितना भी चार्ज है यूनिवर्स में, ठीक है, वो हमेशा किसके मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्रोटॉन चार्ज, ओके, ठीक है। या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या प्रोटॉन के, वी ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, बीइंग लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो भी होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, ऐसा नहीं होता कि हम कहीं से भी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ के ले आए, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि टोटल चार्ज होता है जो भी अपना वो इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा
है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, और इट माइट बी लाइक Q इक्वल्स टू +4 प्रोटॉन, ओके, ऐसे पॉसिबल है चार्जेस। बट ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलो सर 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये पॉसिबल नहीं है, ओके, और यू से लाइक 3.75 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, है ना, तुम बोलो 3.75, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चे, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, ओके, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। ई क्या है यहाँ पे हमने और अभी देखा है, ई कितना होता है, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन क्या है, इंटीजर, ठीक है, एन क्या है, इंटीजर, एन है अपना इंटीजर, और ई है अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या होता है अपना, हमेशा याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक quantization of charge means electric charge always exist in the integral multiple of the electron और proton, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टोटल चार्ज आपका 1.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो, ठीक है, और 1.75 टाइम्स या 3.2 टाइम्स, ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। टोटल चार्ज जो होगा अपना वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है अपना इंटीजर, ठीक है। तो ये दीज वर द प्रॉपर्टीज फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी विच इज हैविंग एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता प्रोटॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बट जितने भी हैं 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, सो क्यू टोटल विल बी 5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये अपना ऐसे करके टोटल चार्ज आ जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ 5 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, अभी अपन ने देखा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। सो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपको 16 तो ये आएगा -8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज अपना कितना आ गया, टोटल चार्ज -8 इंटू 10⁻⁻19। बेटा माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, टोटल चार्ज इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टोटल चार्ज नेगेटिव है, मीन्स द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। तो बेटा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ई, ठीक है, टोटल चार्ज क्या लिख सकते हैं हम किसी भी सिस्टम का, Q इक्वल्स टू एन ई। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है एक बार अच्छे से देखो, इसको क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है बेटा, चार्ज की, किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें क्वेश्चन में
1 कूलम। ठीक है, गिवन क्या है अपना 1 कूलम। चार्ज कितना दिया है हमें, क्यू की वैल्यू कितना है, this 1 coulomb is given as, this q is given as 1 coulomb. If I place the value of q 1 coulomb equals to n into e का वैल्यू कितना होता है, अभी पढ़ा है हमने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से बच्चे अपना n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा सो दैट यू कैन सोल्व। सो आपको n का वैल्यू याद रखना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर अपना n का वैल्यू आ गया, यही बेटा अपना आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर वट एवर वी वांटेड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको टोटल चार्ज दिया था, 1 कूलम चार्ज दिया था। ठीक है, तुम्हें बताना था, आप लोगों को बताना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिलाया जाए कि उनका टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम। ठीक है, तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE, है ना। तो Q क्या होता है अपना टोटल चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, गिवन क्या था अपने पास, Q इक्वल्स टू 1 कूलम। ठीक है, Q का वैल्यू रख दिया 1 कूलम इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं और n कितना आता है अपना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, ये था बेटा। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है थ्रू विच द करंट फ्लोज। हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज द करंट, ये अभी पढ़ना है हमें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मीन्स पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मीन्स पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड ऑल्सो मीन्स द सेम ओनली, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज मीन्स पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाथ, दिस पाथ इज सेड इन द टर्म्स ऑफ द करंट। ठीक है, करंट के रिस्पेक्ट में बोला है। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड द क्लोज पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इसके बाद में मेन कंपोनेंट्स आते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम। सो पहला ए वायर जॉइंट। ठीक है, वायर जॉइंट कैसे बनता है, कोई भी दो वायर्स हैं उनका जंक्शन, जैसे ये दो वायर्स हैं, ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है दोनों वायर्स। ओके, इसको बोलते हैं बेटा वायर जॉइंट। ओके, ये सिंबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्रॉ और मेक द, यू विल बी गिवन द कंपोनेंट्स। ठीक है, 4-5 कंपोनेंट दिए होते हैं, तुम्हें बनाना होता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, सेकेंड थिंग इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाले में वायर ज्वाइन कर रहे थे। ठीक, सेकेंड यू हैव टू वायर्स, सपोज दिस इज द वन वायर, दूसरा एक वायर और है आपके पास, बट दीज बोथ द वायर शुड नॉट टच ईच अदर। ओके, और लाइक दिस शुड नॉट, दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो दीज वायर आर गोइंग वन अबाउट द अदर। ठीक है, तो हम उसको ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का अपना सिंपल सा एक डायग्राम होता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब, symbol of the electric bulb. Okay, the same diagram you have to use in the circuit diagrams while making the circuit diagrams. ठीक है, फोर्थ वाला होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, देखो बेटा दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी हम अलग से भी पढ़ेंगे आगे कंपोनेंट्स में। इलेक्ट्रिक सेल अपना ऐसा बनता है, एक बड़ा और एक छोटा ये होता है। ठीक है, तो जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम लेते हैं हमेशा पॉजिटिव और छोटे वाले को लेते हैं हम
नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी क्या होती है, बैटरी इज समथिंग लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल, और हियर ऑल्सो इट इज रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ऑब्वियसली, तो कैसे बनाओगे, ये एक, ये दो, ठीक है, तीन, जितने भी दिए हैं लाइक इफ इट इज गिवन, ठीक है, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए। तो ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अपना है, यू कैन से बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेटा द नेक्स्ट कम्स द प्लग की और स्विच, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, स्विच कैसा है, ओपन है, स्विच ओपन है, ओपन स्विच है तो कैसा बनेगा, दिस इज द ओपन स्विच, ठीक है। और अगर स्विच क्लोज्ड है तो ओपन और क्लोज में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, प्लग की क्लोज्ड, अगर हमने स्विच में बीच में डॉट बना दिया इट मीन्स द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड मीन्स करंट विल फ्लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा होता है, जिगजैग ऐसा कुछ, ठीक है। ये अपना रजिस्टर का डायग्राम है, रेजिस्टेंस बोलते हैं हम, पर विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस, पढ़ेंगे भी हम क्या होता है रजिस्टर, क्या काम होता है इसका, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। देन कम्स द वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम डिवाइसेस में, आगे से अलग से एक लेक्चर ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होता है, उसके बाद में एक ऐसा एरो होता है, ठीक है, ये होता है अपना रियोस्टेट, ठीक है। इसका रियोस्टेट का एक डायग्राम और है, ठीक है, वो भी अगर बनाना चाहो तो बना लो, हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, रियोस्टेट का एक डायग्राम और है, ये आपने रजिस्टर बना दिया, रजिस्टर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक जोकी होती है इसमें जो स्लाइड करती है, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसीलिए बोलते हैं बेटा, इसकी एक वैल्यू होती है हर वेरिएबल रेजिस्टेंस की, 0 से 10 ओम, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है वहाँ पे हम जो की स्लाइड करवा के और उतना रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं, ठीक है। बस अभी सिंबल्स ध्यान रखो, बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट कम्स द एमीटर, ठीक है, एमीटर कैसा होता है, ये एमीटर का सिंबल है, एक साइड प्लस और दूसरी साइड माइनस। देन द वोल्ट मीटर, सेम एमीटर जैसा सिंबल होता है, बस फर्क ये है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। एमीटर, चलो प्रॉपर्टीज इसके बाद में पढ़ेंगे। एमीटर जो होता है वो यूज में आता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये करंट से रिलेटेड होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, आगे देखेंगे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड द व्हाट इज द करंट, ठीक है। बेटा नेक्स्ट कम्स द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है बेटा, ठीक है, एक कोई भी कंडक्टर है, इधर से चार्ज एंटर हो रहा है, ठीक है, अगर मैं कोई एक क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है, इफ आई एज्यूम दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है, तो यूनिट टाइम में, ओके, यूनिट टाइम में पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट होता है अपना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। या एक चीज और लिख सकते हो,
चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आई अपना फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्यू यहाँ पर है अपना चार्ज और आई क्या है अपना टाइम। ठीक है बच्चे, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अभी पढ़ा है आज ही हमने, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो अगर बेटा मैं करंट का ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहूँ, करंट का आई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कूलम पर, और यू कैन से कूलम पर सेकंड। बेटा इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। ठीक है, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम बेटा, एम्पियर। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, सॉरी, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, करंट का इसका चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, इस चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो करंट का ऐसा यूनिट आ गया अपना कूलम पर सेकंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में देने वाली हैं अपनी। ठीक है, पहला, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। सेकंड चीज क्या ध्यान में रखनी है, सेकंड चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कूलम पर सेकंड, और यू कैन सिंपली से द एम्पियर। ठीक है बेटा, अब ठीक है, हमने बता दिया कि करंट क्या होता है, करंट सिंपली होता है अपना फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। बट करंट का डायरेक्शन क्या होता है ना, करंट तो कैसे भी फ्लो कर सकता है, प्लस से माइनस भी कर सकता है, माइनस से प्लस भी। तो डायरेक्शन क्या होता है करंट का, चार्ज तो कैसे भी फ्लो कर सकता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, और कौन सा चार्ज, चार्ज तो दो दो टाइप के होते हैं सर, कौन सा चार्ज, किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इधर द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा हम दोनों के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन करते हैं, और कन्वेंशनल करंट होता है वो हम पॉजिटिव फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज उसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर मैं एक वो बनाऊं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं, सपोज इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं, इसमें ये अपना सेल है। ठीक है, इसके बाद में ये रजिस्टर है, और ये अपना क्लोज्ड स्विच है। ठीक है, स्विच है, स्विच विच इज द क्लोज। ठीक है, क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो। ये है अपना प्लस, ये अपना माइनस। ठीक है, सेम अगर मैं सर्किट इधर बनाऊं, क्लोज्ड है। ठीक है, ये अपना प्लस है और ये अपना माइनस है। ठीक है, तो बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो डिफाइन करते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल टू द सी। पहले एक चीज ये देखो, इलेक्ट्रॉन करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट है मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। ओके, सो व्हेनेवर वी आर सेइंग विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स flow in the circuit, electrons flow from the negative terminal of the battery, electrons flow from the negative terminal of the battery, ठीक है, to the towards the positive terminal। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है,
और जब बेटा हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट जो बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कन्वेंशनल करंट कैसे डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फ्लो करता है अपना? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ओब्वियसली जिधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है अपना पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। ये अपना फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एक्चुअल में हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका लेते हैं? ये वाला कन्वेंशनल करंट जो हमारा होता है, वो क्या करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन सेम ही होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, बट डिफाइन करने के दो वेज हैं, है ना? डिफाइन करने के दो वेज हैं, एक तो कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, तो conventional, according to the conventional current, what we say that the current flows in the direction of the positive charge. Okay, current flows in the direction of the positive charge. Okay, current flows in the direction of positive charge. Okay, in the direction of flow of positive charge. See this point is very important. Okay, conventional current क्या बोलता है? Current flows in the direction of the flow of positive charge. और whenever we are defining with respect to the electron charge, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बेटा हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे पूरे सर्किट में घूम के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। बट हमारा करंट तो ऐसे जाता है, करंट तो इस डायरेक्शन में जाता है। सो व्हाट वी विल डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स, current direction is opposite to the direction of electrons. Okay, the direction of current is opposite to direction of electrons. Okay, opposite to the direction of electrons, or we can say opposite to the conventional current. ठीक है, opposite to the conventional current. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स किधर जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। प्रोटॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बेटा करंट का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस ऐसे होता है। तो कैसे डिफाइन करना है? कन्वेंशनल करंट डिफाइन करना है हमें। सो इट इज टेकन एज द इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन करंट डिफाइन करना है, सो करंट फ्लोज डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होगा तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन तुम्हें शो करना है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक व्हाट यू हैव टू डिफाइन? यू हैव टू डिफाइन द यूनिट ऑफ द करंट। तो बेटा करंट क्या पढ़ा है हमने? करंट का पहली बात तो यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर यू हैव टू डिफाइन। ठीक है, यूनिट ऑफ द करंट यू हैव टू डिफाइन मीन्स यू हैव टू डिफाइन एम्पियर, 1 एम्पियर। ओके, क्या डिफाइन करना है आपको? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन करना है। जब भी आपको 1 वाली चीज़ें डिफाइन करनी हो, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है, तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखो। आई करंट क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई क्या होता है? करंट क्या होता है? क्यू अपॉन टी। बेटा आई 1 एम्पियर कब होगा? 1 एम्पियर ये तब होगा जब चार्ज कितना हो? 1 कूलम, और टाइम कितना दिया हो अपने पास? 1 सेकेंड। ठीक है, चार्ज कितना हो? 1 कूलम, और टाइम कितना हो?
1 सेकेंड, तो अपना आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमें इसको डिफाइन कैसे करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद में ये डिफाइन करना है 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड लिखना है, उसके बाद में डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर दिस, 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम्ब, ठीक है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लोज पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर। समझ आया? तो जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर। जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, तो करंट कितना आता है अपना 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लोज पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, हर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। ठीक है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके, सो अपने पास गिवन क्या क्या है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सबसे पहले गिवन लिखो। ठीक है, फिर व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, राइट दोज थिंग्स। सबसे पहले क्या दिया है, करंट का वैल्यू दिया है, देखो इसमें तो डायरेक्ट लिखा है, इस क्वेश्चन में तो लाइक डायरेक्टली इट इज गिवन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितना हो गया बेटा अपना, बहुत सी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली लिखा नहीं होता है। ठीक है, 0.5 जैसे दे दिया, एमीटर रीडिंग इज 0.5 एम्पियर, है ना, अभी एमीटर पढ़ेंगे हम डिवाइसेस, तो वहाँ लिखा आता है इट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगता है ये क्या दिया है ना, तो यूनिट पे जाओ बेटा, एम्पियर इज द यूनिट फॉर द करंट, और करंट का यूनिट है, सिंस इट इज द यूनिट ऑफ करंट मीन्स इट इज गिवन करंट वैल्यू। ठीक है, तो हम यूनिट से भी पता लगा सकते हैं क्या दिया है, अगर इफ द इक्वेशन इज सम लाइक लिटिल बिट कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ, तो हम करंट की वैल्यू से पता लाइक ऐसा यूनिट से हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज द लाइक व्हाट क्वांटिटी इट इज गिवन। ठीक है, तो हाँ आगे पढ़ो, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये क्या है बेटा, मिनट्स किसकी ऐसा यूनिट होती है, टाइम की, ये तो सबको पता ही होगा। बेटा जब भी क्वेश्चंस करो, एक मेरा सजेशन है छोटा सा, हमेशा जो भी जितनी भी गिवन डेटा हो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर अभी नहीं किया तो लास्ट में आंसर किसी और यूनिट्स में आएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, आंसर मोस्टली शुड बी इन द ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग से जब भी तुम डेटा लिखो तो उसको हैबिट बनाओ, सबसे पहले उसको ऐसा यूनिट में कर लो। 1 मिनट में बेटा कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया अपना 600 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया अपना 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं सर, तो किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू वी हैव टू राइट हियर, क्यू वी हैव टू कैलकुलेट। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो इन तीनों को रिलेट करता है, क्या है बेटा वो फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज आई इक्वल्स टू the definition for the electric current, I equals to charge flowing per unit time through any cross section of a conductor, I equals to q by t। तो यहाँ से बेटा मैं q क्या लिख सकता हूँ, I मल्टीप्लाइड बाई t। तो I कितना है अपना 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 600 सेकेंड। अगर इसको रिमूव करूँ, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 10 से 10 गया, ये कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा है 300 कूलम्ब। तो Q कितना आ गया अपना 300 कूलम्ब। ठीक है, ये आंसर है बेटा इसका। नेक्स्ट करते हैं एक और, जब भी आप ट्राई करो वीडियो पॉज कर दो, खुद से करो क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर फॉर 40 सेकेंड, सी here it is not mentioned for time 40 seconds, okay, but
यू कैन फिगर इट आउट, है ना, तुम पता कर सकते हो। सेकंड दिया है मतलब ये टाइम दिया है ऑब्वियसली 40 सेकंड। ट्रांसफरिंग ए टोटल चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखो बेटा। गिवन क्या क्या है अपना, गिवन क्या है, टाइम दिया है, फोर्टी सेकेंड। ठीक है, ट्रांसफरिंग ए टोटल चार्ज ऑफ, टाइम कितना दिया है बेटा 40 सेकेंड। ट्रांसफरिंग ए टोटल चार्ज ऑफ, क्यू कितना दिया है आपको इस बार, क्यू दिया है आपको टोटल चार्ज कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम। टोटल चार्ज कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है करंट। करंट क्या होता है अपना, करंट का फॉर्मूला, सबसे पहली चीज निकालना है तुम्हें आई। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो, करंट मींस आई यू हैव टू फाइंड आउट एंड द इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस how many electrons were transferred. So for that you have to calculate, it means you have to calculate the value of n। n का वैल्यू निकालना है आपको। चलो करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है आई का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो व्हाट क्यू इज गिवन 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम अपॉन टाइम कितना दिया है बेटा 40 सेकेंड। सिंस एवरीथिंग इज लाइक every data is given in the SI units, we don't have to convert it to another unit। ठीक है, तो करंट अपना कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लो, तो ये करंट का वैल्यू आ जाएगा अपना 1.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। एक बार बेटा सोल्व करके देखना सारे, ये है, सॉरी करंट है ना ये, तो इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर। ठीक है, तो करंट का वैल्यू आ गया अपना 1.2 इंटू 10⁻−19 एम्पियर। The second thing what we have to calculate, we have to calculate the n। So how you can calculate the n beta? In the starting of the chapter we studied one thing, ठीक है, total charge is integral multiple of the total charge of any system is the integral multiple of the electronic charge। we have studied q equals to ne। ठीक है, इसको यूज में लो, टोटल चार्ज हमें पता है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना दिया है इस बार 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है होता है बेटा 1.6। ठीक है, दिया भी है, अदरवाइज अगर नहीं भी दिया तो ये आपको याद रखना है, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या है अपना 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये कितना आ रहा है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे 30 आई थिंक। कर लेना इसको सोल्व, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 और ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इट विल बी 13 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 30 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें करंट निकालना था, करंट निकालने के बाद हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। ठीक है, तो करंट निकालने के सबसे पहले अपने पास टाइम दिया था 40 सेकेंड, फिर टोटल चार्ज दिया था अपने पास, टोटल चार्ज कितना था 4.8 इंटू 10⁻−18 कूलम्स। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू हमने रख दिया 4.8 और टाइम दिया है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज हमें क्या निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। नंबर जब भी निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, क्यू इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज पढ़ा था हमने, क्यू इक्वल्स टू एनी चार्ज, टोटल चार्ज exist in the form of integral multiple। okay, integral multiple of the electronic charge 4.8 into 10⁻−18 coulomb equals to n into 1.6 into this is the electronic charge। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, तो पढ़ो बेटा इसको, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो
व्हाट इज गिवन। ठीक है, सबसे पहले दिया है करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। एम स्मॉल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर। एम मतलब मिली। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखो। सबसे पहले क्या दिया है आपको, करंट का वैल्यू कितना दिया है, 250 मिली एम्पियर। बट सर हमने मिली एम्पियर ऐसा तो कुछ यूनिट पढ़ा नहीं, करंट का यूनिट तो होता है एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर में क्या करना है, लाइक वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द एम्पियर ना, इट इज गिवन इन मिली एम्पियर। तो बेटा हमें एक चीज याद रखना, मिली एम्पियर से जब भी एम्पियर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, 250 डिवाइडेड बाय 1000, मिली का मतलब होता है 1000, ठीक है, एम्पियर। ठीक है, एक चीज याद रखना, 10⁻³ ये होता है अपना मिली एम्पियर, और 10⁻⁻6 इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। 10⁻⁹ क्या होता है अपना, ठीक है। हाँ चलो इसको हटाओ। हाँ, तो करंट दिया हुआ है हम अपना 250 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट अपना दिया हुआ है 250 मिली एम्पियर। 250 मिली एम्पियर मीन्स 250/1000। चलो ठीक है, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। देन 2 मिनट्स, कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, कितने देर के लिए फ्लो होता है ये करंट, 2 मिनट्स के लिए। तो टाइम कितना दिया है बेटा, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 2 × 60, 120 सेकेंड। टाइम कितना आ गया अपने पास, 120 सेकेंड। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो चुका है, कन्वर्ट द करंट, कन्वर्ट द करंट इनटू एम्पियर। करंट को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना था, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करंट 250। तो इसको अगर आगे सोल्व करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट दिस, 0.25 0.25 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना 0.25 एम्पियर। ठीक है, द सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू, कैलकुलेट द टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर। क्यू टोटल निकालना है। तो हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला अपने पास है, I = Q/T। ठीक है, वहां से टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है क्यू टोटल, तो वो क्या हो जाएगा अपना I × T। ठीक है, इसको T को क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको I/1 लिख लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो Q विल बी इक्वल टू IT। ठीक है, तो अगर हमें Q निकालना है टोटल चार्ज, तो व्हाट आई कैन राइट, Q टोटल इक्वल्स टू, करंट कितना है अपना 0.25 एम्पियर इंटू 120 सेकेंड। ठीक है बच्चे, ये मैंने Q का वैल्यू, सॉरी I का वैल्यू रख दिया है, करंट का वैल्यू, और ये अपना टाइम का वैल्यू। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, Q इक्वल्स टू IT। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक ये आ गया 1/4, 4 3 ये आ गया अपना 30 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 30 कूलम्ब्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना, ये तो चार्ज निकालना था ना। टोटल चार्ज अपना आ गया 30 कूलम्ब्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 30 कूलम्ब्स। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 30 कूलम्ब्स।